Today we are going to study about history, India and the contemporary world, part 2, which forms part of class 10th history. Class 10th history. So the first chapter in this book is the rise of nationalism in Europe. So the figure that we can see now is the dream of worldwide democratic social and republic, the pact between the nations. This, this print was prepared by Frederick Sorrow in 1848. So 1848, Frederick Sorrow, a French artist, he prepares a series of 4 prints visualizing his dream. So this is his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first figure of the series shows the people of America and Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. So, so you see, this Frederick Sorrow, जो फ्रेंच आर्टिस्ट है, ये बात कर रहा है वर्ल्ड की, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, लेकिन बात कर रहा है सिर्फ यूरोप एंड अमेरिका की. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personalized liberty as a female figure. She bears in one hand the Charter of the Rights of Man, Torch of Enlightenment and the Charter of the Rights of Man. क्या क्या हो गए? Torch of Enlightenment, एक हो गया Torch of Enlightenment और दूसरा हो गया Charter of the Rights of Man in the other. ये क्या है? On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of symbols of absolutist institutions. तो अब इसमें सामने क्या पड़े हुए हैं? ये 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 लेडी है, ये लेडी है, एक हाथ में उसके लाइट है यहाँ पे, दूसरे हाथ में चार्टर है. सामने क्या पड़े हुए हैं? टूटे हुए जो एब्सोल्यूटिस्ट के ये वो नीचे ये ग्राउंड भी पड़ा है यहाँ पे. तो जो एब्सोल्यूटिस्ट लोग हैं उनके टूटे हुए symbols of absolutist institutions. In Sorrow's utopian vision, यूटोपियन क्या होता है? इमेजिनरी वर्ड क्या होता है? इमेजिनरी वर्ड. पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? डिस्टिंक्ट नेशंस है. क्या है? Distinct nations. आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. Leading the profession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland. Which is why I कौन तभी वापस आ रहा था. तो सोलो के वर्ड में क्या हो रहा है? डिस्टिंक्ट नेशंस हैं, वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? कैसे आइडेंटिफाई होंगे? फ्लैग से और कॉस्ट्यूम से. किससे? Flags or costumes. लीडिंग द नेशंस जो हैं वो ये हैं. Which by this time were already nation states. Because इसमें कौन कौन है? इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्जरलैंड है. और वो बोल रहा है कि ये ऑलरेडी क्या हो गया था, इस टाइम तक क्या बन चुके थे? एक नेशन स्टेट बन चुके थे. तो देखा जाए तो ये फ्रांस में बना रहा है, लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड यूएस इन्वॉल्व कर रहा है.
France identifiable by revolutionary tricolor. By revolutionary tricolor has just reached the statue. मतलब वो लोग पहले पहुंच चुके हैं, फ्रांस जो है बाद में पहुंच रहा है. She is followed by Germany, wearing the black, red, and gold flag. Interestingly, at the time when Soro created this image, German people did not yet exist as a nation. ये बना रहा है तो जर्मनी था ही नहीं, फिर भी जर्मनी का बना रहा है वो. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Austria, kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia. From the heavens above, Christ, saint and angels देख रहे हैं उसको. They have been used by the artists as symbolize fraternity among the nations of the world. कौन कौन इसके अंदर आ गया? सबसे पहले था यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद आया था स्विट्जरलैंड जो ऑलरेडी बन चुका था तब तक. फिर उसके बाद आया फ्रेंच. फ्रांस. फ्रांस, फ्रांस. फिर जर्मनी, फिर उसके पीछे सबसे पहले बन चुका है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, 1 और 2 ऑलरेडी बन चुके हैं. फिर आ जाता है फ्रांस 3 नंबर का. 3 नंबर पे आ जाता है फ्रांस फ्रांस. ट्राई कलर से. फिर उसके पीछे आता है जर्मनी जो अभी तक बना ही नहीं है. ठीक है? उसके पीछे आता है ऑस्ट्रिया, फिर टू सिसिलीज, फिर लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया. टोटल 12 कंट्रीज को दिखा रहा है वो. उसके साथ में किसको दिखा रहा है? क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल. और वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस, क्योंकि ये सारे क्या है? ये क्रिश्चियन नेशंस है. क्या है ये? डिस्टेंट नेशंस. क्रिश्चियन नेशंस. क्रिश्चियन इसलिए नेशन. जीसस क्राइस्ट को बुला के उसने उसको वैलिडेट कर दिया. समझे हाँ. कि ऊपर से जीसस क्राइस्ट भी आ गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, सब सब एक साथ आ जाएंगे. ठीक है. ये फोटो है हमारा 12 नेशन. इसमें देखो ऊपर जीसस क्राइस्ट भी खड़े हुए हैं और भी बहुत सारे एंजल्स खड़े हुए हैं. ये सब चले आ रहे हैं पीछे लाइन बना के, ट्रेन बना के, है ना. लाइन बनी हुई है, 12 कंट्री चली आ रही है पीछे. सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे है रशिया. हाँ, रशिया. सबसे पीछे कौन है? रशिया. रशिया है. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस फोटो के अंदर क्या क्या है? किसने बनाया पहले तो? किसने बनाया पिक्चर? बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये. 1848 में किसने बनाई है? फ्रेडरिक ऑरियो. तो नाम क्या दिया इसने? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. ठीक है. तो इसमें क्या रहा है? सबसे पहले है स्टैचू ऑफ, क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास क्या है? 2 चीजें. क्या क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट. क्या है?
और दूसरी चीज क्या है? चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है? अब क्या होता है? और इसके सामने पड़ा हुआ है टूटे हुए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल। क्या पढ़े? सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब उसके अंदर क्या आ जाती हैं? दो कंट्री पहले ही आ गई हैं। कौन है? इसलिए वो आगे चली गई हैं। और तुम देखो ये ऑलरेडी पास हो चुकी है, मतलब वो ऑलरेडी डेमोक्रेसी बन चुकी है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर यहाँ पे है तो दो कंट्री ऑलरेडी आगे जा चुकी हैं। कौन कौन है उसमें? है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। कौन है? ये उससे आगे चली गई। अब आती है उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे पीछे आती है, 3 नंबर पे आती है कौन? फ्रांस। कौन आती है? उसके पीछे आती है जर्मनी। उसके पीछे आती है, उसके पीछे कौन है? ऑस्ट्रिया। फिर आती है सिसिली, टू किंगडम्स ऑफ सिसिली। फिर 7 नंबर पे कौन है? लॉम्बार्डे। कौन है? लॉम्बार्डे। 8 नंबर पे कौन आ रही है? पोलैंड। 9 नंबर पे कौन आ रही है? इंग्लैंड। 10 नंबर पे कौन आ रही है? आयरलैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ? आयरलैंड को इंग्लैंड ने ही ऑक्युपाई कर लिया। 11 नंबर पे कौन आ रही है? हंगरी। हंगरी कैपिटल कौन है अभी? हंगरी कैपिटल कौन है? बुडापेस्ट। फिर आती है रशिया। तो ऐसे चली आ रही हैं सारी कंट्रीज, जो ये लाइन में है, यहाँ पे लाइन में चली आ रही हैं ये सारी कंट्रीज ऐसे। और ये दो कंट्री ऑलरेडी आगे जा चुकी है, ठीक है? इस पिक्चर के अंदर सबसे पहला सिंबल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके हाथ में दो दो चीजें। फिर आ गया यूएस एंड स्विट्जरलैंड। फिर आ गया फ्रांस, फिर आ गया जर्मनी, फिर आ गया, फिर कौन आ गया? फ्रांस जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिली, फिर लोम्बार्डी, फिर पोलैंड। पता नहीं ये फ्लैग सही है कि नहीं, मुझे पता नहीं, बट मैं मानता रहा हूँ। इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, फिर हंगरी, फिर रशिया, ठीक है? उसके अलावा आ गए ऊपर जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे सेंट्स एंड एंजल्स, जिन्होंने आके इस पूरी एक्टिविटी को कर दिया। अब आता है यहाँ पे कि एब्सोल्यूटिस्ट कौन होते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम है ऑफ रूल दैट हैज नो स्ट्रेंथ्स, जो मर्जी आता करते हैं। द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री द टर्म रिफर टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। तीन प्रॉपर्टी थी इनकी, सेंट्रलाइज होती थी, मिलिटराइज होती थी और रिप्रेसिव, लोगों को दबाती थी। यूटोपियन क्या है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज आइडियल, दैट इज इट इज अनलाइकली टू, मतलब फैंटेसी है वो, अनलाइकली है। इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन? क्या लगता है तुम्हें?
क्यों यूटोपियन दिखा रहा है ये? क्या लगता है आपको? Hmm? Since why do you think it is a utopian vision? इमेजिनरी है। क्योंकि ये अभी तो कुछ बने नहीं है पहली चीज तो। बनने के बाद ये वैसे नहीं बने जैसे उनको बनना, जैसा इसने इमेजिन किया था, तो इसलिए यूटोपियन विजन में ये आएगा। So this chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio. इसकी pronunciation देखना पड़ेगा आपको। During the 19th century, nationalism emerged as a force. तो क्या निकल के आया बाहर? नेशनलिज्म निकल के आया, which brought out sweeping changes. उसने बहुत बड़े चेंजेस लेके आया किसमें? पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires. तो नेशन स्टेट्स निकल के आए rather than मल्टीनेशनल डायनेस्टिक। डायनेस्टी मतलब राजाओं वाले। The concept and practices of modern state, in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory, had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of a citizen, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. तो ये commonness पहले से नहीं थी, बाद में डेवलप हुई. It was forged through struggles. Struggle करके ये forged की गई. क्या चीज? Commonness to form a nation state. This chapter will look through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in the 19th century. तो चैप्टर क्या देखने वाला है? कैसे नेशन स्टेट बन के बाहर निकले। दैट इज द टॉपिक। देख लेते हैं ये अर्नस्ट रेनन ने एक बोला, व्हाट इज अ नेशन? इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉन 1882, फ्रेंच फिलोसोफर थे अर्नस्ट रेनन, understanding of what makes a nation. This lecture subsequently published as a famous essay titled, the French है भाई साहब, What is a Nation? In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that nation is formed by a common language. तो उसने क्या बोला कि नेशन ऐसा नहीं है कि बनता है कॉमन लैंग्वेज से, रेस से, रीजन से और टेरिटरी से। वो क्या बोलता है? A nation is a culmination of a long lasting of endeavors, sacrifice and devotion. A heroic past, great men, glory, that is social capital upon which one bases a national idea. To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to form still more. Still more, these are essential conditions of being a people. A nation is therefore large-scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has any real interest in annexing or holding on to country against its will. जो नेशन होगा वो कभी कंट्री कौन है? वहां के इनहेबिटेंट कौन है? वहां के रहने वाले लोग, उनको कभी उनके विल के अगेंस्ट में कभी ना एनेक्स किया जाएगा, ना उनको होल्ड किया जाएगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन,
their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. ये बेसिकली नेशन की डेफिनेशन दी। पहले सोचते थे लोग, क्या सोचते थे कि नेशन क्या है, जहां पे कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी की बात हो, लेकिन वो बोलता है ऐसा नहीं है। क्या बोलता है वो? ये क्या कल्मिनेशन है? पहली चीज तो कल्मिनेशन है किसका? कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग एंडेवर्स ऑफ सैक्रिफाइस, एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। पहली चीज इसने ये बोली नेशन के बारे में। दूसरी क्या बोली? उसका एक हीरोइक पास्ट, उसके ग्रेट मेन, ग्लोरी का, वो उसका सोशल कैपिटल है। कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट and common will in the present to have performed great ideas to perform still more. तो कॉमन ग्लोरी पास्ट में है, विल प्रेजेंट में है, और ग्रेट आइडियाज को करने का, टुगेदर करने का और करने का वो मन है। These are essential conditions of being a people. A nation therefore is a large scale solidarity. Solidarity क्या होती है? जब कोई चीज सॉलिड हो जाए। तो it is existence is a daily plebiscite. Plebiscite क्या होता है? प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड क्या है? नहीं। और इस प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड होता है अपनी प्लेबिसाइड है द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज अ चेंज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। उनका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में वोट है। प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स। प्रोविंस कौन है? वहां के रहने वाले लोग हैं। इफ एनीवन हैज अ राइट टू बी कंसल्टेंट, वो है उसके इनहेबिटेंट। नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट। उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं, वो नेशन जो है किसी को पकड़ेगा, दबाएगा, किस लिए? उसकी मर्जी के अगेंस्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी। द एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी which would be lost if there is only one law and one master. तो ये निकल के बाहर आया। प्लेबिसाइड क्या है? A vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. डिस्कस करना है क्या? Attributes of a nation as Renan understands why in his view a nations are important. बताओ।